हालेलुया। उसका वचन कहता है कि उसकी करुणा और दया की वजह से हम नाश नहीं हुए। His word says, because of His great mercy, we are not consumed. अगर आप जीवित हैं If you're alive, तो इसका मतलब परमेश्वर का भी बहुत काम है। that means God has a lot of work pending. अगर काम पूरा हो जाता If तो the घर work- चले जाते। If the work was over, you would have gone home. अगर जीवित हो If you're alive, तो बहुत कुछ करना है अभी। then there is much to do. आमेन। Amen. एंड मैं बिलीव करता हूँ ये साल अभी तक का हमारा बेस्ट साल होगा। I believe this year is going to be our best year so far. आमेन। ये बेस्ट साल होने वाला है। This is going to be our best year so far. 5 गुना बढ़ोतरी, 5 પાંચ. times increase, गुना अनुग्रह, 5 times grace, 5 गुना परमेश्वर की सामर्थ। 5 times God's power. आमेन। और जैसे मैं सोच रहा था इस बारे में, 5 जो है, आप अपने हाथ को जब देखते हैं उसमें 5 उंगलियां, ये 5 ग्रेस का नंबर है, अनुग्रह का नंबर है। And then I was thinking about it. There's 5 fingers in your hands. 5 is the number of grace. और अगर आप ये जो साल अगर आप इब्रानी कैलेंडर में भी देखें तो ये 5 से शुरू होता है और 5 से खत्म होता है। And if you see the year in the Hebrew calendar, it starts on the day 5 and ends on day 5. और जब उसको साथ में जोड़ेंगे तो 25 होता है। And together it's 25. और ये साल भी 2025 है। And the year is 2025. 5 times 5, 5 गुना 5. Amen. Amen. आमेन। Amen. हालेलुया। सो इस साल मैंने आपको लास्ट ईयर भी बोला था, इस साल वैसे नहीं होगा जैसा पिछले साल हुआ। I told you this year is not going to be like the last year. आमेन। साल आपके ऊपर वैसा नहीं होगा जैसा साल होना चाहता है। The year will not be upon you the way the year wants to be. आप अपने मुंह से दिशा देंगे इस साल में। But you will give the direction to this year through your mouth. आप घोषणा करेंगे कि मेरा साल कैसा होगा। You will decree and declare how your year is going to be. आमेन। हालेलुया। आमेन। वचन के लिए For the word, याद रखिए, 5 गुना अगर ग्रेस है तो 5 गुना मेहनत भी कराएगा ग्रेस आपसे। remember, if there's 5 times more grace, the grace will make you labor 5 times more. Amen. हाँ, अनुग्रह इसलिए नहीं है कि घर पे बैठो चिप्स खाओ। Grace is not so you can sit at home and eat chips. अनुग्रह को उद्देश्य के साथ दिया जाता है। Grace is given with a purpose. पौलुस प्रेरित कहता है Paul the apostle says, कि मैंने उस ग्रेस को, मैंने उस अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहरने दिया जो मेरे ऊपर हुआ। that I did not let that grace go in vain which was upon me. तो ये मेरी प्रार्थना है इस कलीसिया के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए, कि वो अनुग्रह आप व्यर्थ ना जाने दें इस साल। This is my prayer for this church, for every person here, that you would not let that grace go in vain which is upon you. आमेन। कल रात जब मैं वचन बना रहा था तो ये वचन मेरे पास आया। Last night when I was preparing the word, this word came to me. ज़करिया 4:7। Zakaria 4 उसका 7. अभी इस साल कितना भी बड़ा पहाड़ हो, No matter how big a mountain is, परमेश्वर का सामर्थ उसको चूर चूर कर देगा। this year the power of God will destroy it for you. आमेन। Amen. कितनी भी बड़ी बीमारी हो, No matter how कितनी big a भी बड़ी sickness, परीक्षा हो, how big a कितना भी temptation, बड़ा चैलेंज हो, how big a challenge, ये साल महान पहाड़ को भी धूल कर देगा। this year God will bring down every great mountain to dust. और ये प्रतिज्ञा मैं आपको दे रहा हूँ, ज़करिया 4:7। And this promise I am giving to you, Zakaria 4 उसका 7. Who are you, O great mountain?
कौन है तू हे बड़े पहाड़? Not just a mountain, सिर्फ पहाड़ ही नहीं, but a great mountain. लेकिन एक बड़ा, एक महान पहाड़. मैंने आपको बताया था, I- पहाड़ वो है जो आपके लिए बहुत बड़ा है. I told you a mountain is something that is too big for you. अब ये पहाड़ भी नहीं है, Now this is not ये even a महान mountain. पहाड़ है. This is a great mountain. यानी बहुत 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 बड़ा है. This is a very big mountain. मगर जो विश्वास के लोग हैं But the people of faith, वो ऐसे बोलते हैं, they speak like this. हे बड़े पहाड़, Oh, you great तू mountain. क्या है? What are you? Amen. Amen. इस साल आपको अपनी भाषा चेंज करनी है. This year you need to change your language. इस साल आपको अपनी बोली चेंज करनी You है. have to change the way you speak. आप वैसे नहीं बोल सकते जैसे कई सालों से बोलते आए हो. You cannot speak the way you have been speaking from years. I want you to put Numbers 14:28. इस साल गिनती एक prophetic 14:28 word ये है, ध्यान से इसको याद रखो, इसको बांध लो, अपने पास रख लो. गिनती 14:28 ये this is the prophetic word for the year. Remember it, tie it around you. ये आपका परमेश्वर आपसे प्रतिज्ञा कर रहा है. This is the promise that your God is giving to you. Say to them, so I'm saying to you. परमेश्वर ने कहा उनसे बोल दे मूसा, so मैं आपसे बोल रहा हूं. Amen. Amen. उनसे कहे कि यहोवा की यह वाणी है कि मेरे जीवन की शपथ, जो बातें तुमने मेरे सुनते कही हैं, निसंदेह मैं उसी के अनुसार तुम्हारे साथ व्यवहार करूंगा. Amen. इस साल एक भी वचन जमीन पर गिरेगा नहीं यीशु के नाम में. This year not even one word will fall to the ground in Jesus name. इस समय हर प्रतिज्ञा को आप पूरा होते हुए देखोगे यीशु के नाम में. You will see every promise come to pass in Jesus name in this time. हालेलुया. क्या आप विश्वास करते हो इस बात Do में? you believe? हर एक चीज परमेश्वर के राज्य में विश्वास से कार्य करता है. Everything in the kingdom of God works through faith. जो लोग बोलते हैं अरे ये नया साल है तो कुछ तो बोलेंगे, The people that say, oh, it's a new year, so ऐसे they'll say कुछ नहीं something. होता. Things don't happen तो like मैं that. लिख के दे रहा हूं, उनके साथ ऐसा ही होगा. Then I will write and give that this is what will happen to them. क्या आपने पढ़ा? परमेश्वर कह रहा है जो तू मेरे सामने बोलेगा, What did you मेरी read? उपस्थिति में बोलेगा, वैसा ही मैं तेरे साथ करूंगा. The Lord has said, whatever you will speak in my hearing, in my presence, so will I do to you. और उसकी उपस्थिति में मैं ये घोषणा करता हूं, ये साल आपके जीवन का अब तक का बेस्ट साल होगा यीशु मसीह के नाम में. आप सब बैठ सकते हैं. You all can be seated.